So hello all, I welcome you all in our next video of Prayag Public School, and this video is for class 8. And we are continuing with the same story that we started in our last video, that is lesson 9, Jamaican fragment, right? So class, if you remember in our last video we have gone through the same story, right, where we have studied, or in this story we have studied that or this story is all about two young boys. One was black and another was in or white in color, right? So these two boys were playing the game of bossism. Bossism means uh, on every alternate days they were dominating, or they were ordering, or they were ruling on each other on every alternate days, right? And this whole incident was captured by, or was was witnessed by a person who was standing behind them, right? And that particular person who was watching these two boys, they were playing the game of bossism. He was after seeing all these things, after seeing this particular incident, he was very amazed and puzzled means confused, right? That why these boys are playing such and such games, right? And he was also confused that in a so young age, these two boys in a so young age, they were dominating, or they were able to dominate, or they have learned how to dominate or rule over another person, right? And in the mind of this particular person, one thing also struck very badly, that in a very young age they were able to they were able to know, or they were knowing that what are the deficiencies in them, and that is why, and that is the reason why these two young boys were following the orders of one another on alternate days, right? So till here we have studied in this particular story, right? So let's start with continuing the story. Let's study further, or let's read further, and then understand what the story is having a conclusion, right? Or what the story is still having, what the information the story will be giving to us, right? So let's proceed with the story, class. So lesson 9, Jamaican fragment, which is getting continued for class 8. Let's proceed with the story, class. I saw it now. This was indeed a game, right? So that particular person who was standing behind these two young boys, right, he was watching all the things, right, especially the game that was going on between these two young boys. This was indeed a game. Indeed means actually. So he is saying, that person is saying yes, actually it was a game that they were playing. They were not dominating each other. They were not the two young boys, they were not dominating each other, or they were not ruling uh, on each other, but actually they were playing a game I had played as a child. Now this person is saying कि एक ऐसा ही गेम या ये वही गेम था जो मैं अपने बचपन में खेला करता था. Each boy took his turn every alternate day. Every alternate day means another day. हर दूसरे दिन जो बच्चे, जितने भी बच्चे, 2 या 3 या 4 जो भी बच्चे खेलते हैं ये गेम, मतलब जितने लोग या जो भी बच्चे ये इस गेम को खेलते हैं, वो हर ऑल्टरनेट, मतलब हर दूसरे दिन हर एक की टर्न आती है. हर एक की टर्न मतलब जैसे एक ए बी सी, मान लो ए एंड बी एंड सी हैं, तो एक दिन ए रूल करेगा बी पे और सी पे, देन एक दिन बी रूल करेगा ए और सी पे, देन एक दिन सी रूल करेगा ए और बी पे. तो लाइक दिस द गेम was having its rule, right, to be the boss. और हर alternate days पे हर बच्चे की टर्न आएगी कि वो क्या बनेगा, बॉस बनेगा, और उन 2 बच्चों पे या एक बच्चे पे वो क्या करेगा, रूल करेगा. द अदर द स्लेव, एक बॉस बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, स्लेव मीन्स लेबर. इट हैड बीन ग्रेट फन टू मी एज अ यंगस्टर. और ये अपने बचपन को याद कर रहा है, या ये जो इंसान है जो पीछे उनके खड़े होके वो सारी चीज़ें दोनों बच्चों को देख रहा था खेलते हुए, तो वो अपने बचपने को याद करता है कि कितना अच्छा गेम होता था जब जब वो खुद अपने बचपन में ऐसा गेम एक खेला करता था.
आई स्माइल्ड एज आई रिमेंबर्ड, और उसे हंसी आ जाती है जैसे वो सारी चीज़ें वो अपने बचपने की याद करता है. आई लुक्ड एट द मैन स्टैंडिंग बाय द गेट. नाउ ही इज़ लुकिंग एट द मैन हु वॉज स्टैंडिंग बाय द गेट, मीन्स नियर द गेट. ही वॉज अ वाइट मैन, और वो एक गोरा आदमी था. ठीक है. आई रिमेंबर्ड वॉट आई हैड थॉट यस्टरडे. ठीक है. तो आई रिमेंबर्ड वॉट आई हैड थॉट यस्टरडे. अब ये याद करता है कि कल जो मैं इन दोनों बच्चों को, क्योंकि ये दूसरा दिन था जब वो उन बच्चों को जाते वक्त रुक के देख रहा था. तो पहले दिन उसने देखा कि वाइट बॉय बॉस बना हुआ था और ब्लैक बॉय उसका ऑर्डर फॉलो कर रहा था. दूसरे दिन उसने देखा कि ब्लैक वाला जो बॉय था, लड़का था, वो बॉस बना हुआ था और वाइट वाला जो लड़का था वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था. तो आई रिमेंबर्ड वॉट आई हैड थॉट यस्टरडे. अब वो याद करता है कि वो याद करता है कि मैं जो कल सोच रहा था, वो सारी चीज़ें जो वो कल सोच रहा था वो उसके दिमाग में आ जाती हैं. ही नो डाउट आई थॉट टू माई सेल्फ वॉज वंडरिंग इफ़ द ब्लैक रेस इज़ सुपीरियर टू द वाइट. राइट. तो इसका मतलब है कि अब वो वहाँ पे खड़ा है और जैसे उसके उसके जो उस इंसान को देखता है जो गेट पे खड़ा हुआ है, और वो गेट पे खड़ा हुआ इंसान कैसा है, वाइट कलर का है, मतलब गोरा आदमी है. ठीक है. तो वो इंसान जो इन दोनों बच्चों को कल भी देख रहा था और आज भी देख रहा है, ठीक है, वो कल की बातों को पूरी तरीके से याद करता है कि कल मैंने कुछ और देखा था और आज मैं कुछ और देख रहा हूँ. ठीक है. और यही चीज़ उस इंसान के लिए भी सोचता है जो गेट के पास खड़ा हुआ है कि आज, क्योंकि वो गेट के पास जो खड़ा हुआ है आदमी, उसका आज पहला दिन है और वो ये सारी चीज़ें देख के वो क्या सोच रहा होगा कि जो ब्लैक वाला लड़का है वो सुपीरियर है किससे, बहुत ज़्यादा किससे, वाइट वाले बॉय से. इसीलिए ब्लैक वाला बॉय जो है वो मतलब बॉस बना हुआ है और वाइट वाला जो बॉय है, लड़का है, वो उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहा है या ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है. राइट. सो ही नो डाउट आई थॉट टू माई सेल्फ. उसने ये भी सोचा, मतलब अपने आप से तुरंत उसने अपने दिमाग में सोचा कि कोई इसमें डाउट नहीं है कि जो आदमी गेट के पास खड़ा हुआ है वो यही सोच रहा होगा कि जो ब्लैक वाला लड़का है वो बहुत सुपीरियर है किससे, वाइट वाले लड़के से. ठीक है. वॉज वंडरिंग इफ द ब्लैक race is superior means outstanding to the white. Right. I laughed. Let's proceed further class. I laughed gently to myself. Gently means softly. वो धीरे से हंसता है. ठीक है. क्योंकि इस इंसान की तरह किसको और गलत फहमी हो रही थी, उस इंसान को भी गलत फहमी हो रही थी जो कि आज गेट के पास खड़े होकर इन दोनों बच्चों को देख रहा था. ठीक है. हाउ सिली ग्रोन अप्स आर, हाउ क्लेवर वी आर, how wonderfully able we are to impute deep motives to children's actions. Right. So how silly grown ups are. grown ups मतलब इन दोनों बच्चों के बारे में कह रहा है या उन सारे बच्चों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है जो ऐसे गेम खेलते हैं कि बच्चे कितने स्टूपिड होते हैं. how clever we are and how, like clever means how intelligent we are. Right. how wonderfully able we are to impute deep motives to childish action. ठीक है. और ये आगे बोलता है कि कितना आसान हो जाता है हम लोगों के लिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना या प्री अजम्पशन, मतलब प्री अजम्पशन का मतलब पहले से ही ये मान लेना जो कि ये बात सच भी नहीं थी. क्योंकि ये दोनों बच्चे जो खेल रहे थे वो एक गेम था कि एक दिन एक बॉस बनता था, दूसरे दिन दूसरा बॉस बनता था. पर जो यहाँ पे खासकर जो इंसान उनके रोड पे खड़े होके, गेट वाले इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रोड पे खड़ा हुआ इंसान था, वो इन दोनों को जब देखता है, पहले दिन भी देखता है और दूसरे दिन भी देखता है, तो वो यही सोचता है कि खासकर जब पहले दिन देखता है तो वो क्या सोच लेता है, प्री अजम्पशन ये कर लेता है, या प्री अजम्पशन करने का मतलब पहले से ही सोच लेना या विचार कर लेना कि वो ये विचार कर लेता है, ये सोच लेता है अपने दिमाग में कि यहाँ पे जो वाइट वाला लड़का है वो ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा पता है सारी चीज़ों के बारे में, उसको अपनी स्ट्रेंथ पता है, इसलिए वो रूल करेगा और वो रूल करने के लिए बना ही है किस पे, ब्लैक लोगों पे. ठीक है. काले लोगों पे. तो वो इस तरीके से एक माइंडसेट बना लेता है. ठीक है. तो वो यही बात यहाँ भी हो रही है कि हाउ वंडरफुली एबल वी आर टू इम्प्यूट डीप मोटिव्स टू चाइल्डिश एक्शन. अब क्योंकि ये जो बच्चे थे वो गेम खेल रहे थे, वो चाइल्डिश एक्शन कर रहे थे, मतलब एक बचकानी हरकतें वो कर रहे थे कि एक दिन एक बॉस बनता था, दूसरा दिन कोई बॉस बनता था. पर इन दोनों के गेम को
देख करके लोगों को, खासकर उस इंसान को जो वहाँ पे रोड पे खड़े होके देख रहा था, उस इंसान को ये लग गया कि ये गेम नहीं, ये हकीकत है, कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये वाइट वाला बॉय क्या करेगा, उस ब्लैक वाले बॉय पे रूल करेगा। ठीक है। This man, I said to myself, will puzzle all day on whether the blacks will eventually rise and rule the world because he thinks he sees a little black boy realizing at a tender age his superiority over the white. Right? सो आई सेड टू माई सेल्फ, उसने अपने आप से एक बात कही, मतलब अपने आप से, वो इंसान जो अभी रोड पे खड़े होके देख रहा था, वो इंसान अपने आप से बात करता है कि आई सेड टू माई सेल्फ विल पजल दिस मैन। आई सेड टू माई सेल्फ मतलब उस आदमी जो आदमी गेट पे खड़ा हुआ है उसको देखते हुए, ये आदमी दूसरा वाला जो रोड पे खड़ा हुआ है, वो अपने दिमाग में ये सोचता है कि मुझे पक्का यकीन है कि ये जो आदमी गेट पे खड़ा हुआ है और मेरी तरह इन दोनों बच्चों को देख रहा है, वो भी यही सोचेगा। पजल मीन्स कन्फ्यूज्ड, वो भी यही उसको उसके अंदर भी, उसके दिमाग में भी यही कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, सारे दिन कि क्या मतलब वो जो ब्लैक वाला लड़का है विल इवेंचुअली, मतलब एट लास्ट, ठीक है, वेदर द ब्लैक्स, क्योंकि जो रोड पे खड़ा हुआ है उसका ये दूसरा दिन था, पर जो इंसान गेट पे खड़ा है उसका ये पहला दिन था। ठीक है, तो पहले दिन जब वो, अगर मैं जो रोड पे इंसान खड़ा था, जो बाहर फेंस के दूसरे साइड खड़ा था, ठीक है, उसकी बात करूँ तो वो उसका दूसरा दिन था। पहले दिन उसने वाइट वाले बॉय को रूल करते हुए देखा था, और आज दूसरे दिन में वो ब्लैक वाले बॉय को रूल करते हुए देख रहा था। पर जो इंसान गेट पे खड़ा था उसका आज पहला दिन था, मतलब वो पहली बार इन दोनों बच्चों को देख रहा था, तो उसको लगा कि ब्लैक वाला ज़्यादा सुपीरियर है। तो वो पहले दिन की बातें नहीं जान रहा है, तो वो आज के बातों को लेकर के अपना माइंडसेट बनाएगा। और क्योंकि जो रोड पे इंसान खड़ा था, मतलब जो फेंसिंग के दूसरे साइड खड़ा था, वो तो दोनों दिन ये गेम को देखा था, उसने पहले दिन भी देखा था, दूसरे दिन भी देखा था, तो उसके समझ में आ गया था कि ये कुछ नहीं, गेम है। ठीक है, पर ये जो फेंसिंग के दूसरे साइड खड़ा है, मतलब जो रोड पे खड़ा है, वो इंसान अब किसके दिमाग से सोच रहा है? उस इंसान के दिमाग से सोच रहा है जो कि गेट पे खड़ा हुआ है, कि उसके दिमाग में इन सब चीज़ों को देख करके उसने क्या सोचा होगा। तो वही कहता है कि दिस मैन, आई सेड टू माई सेल्फ will puzzle means will be confused all day on whether the blacks will eventually rise and rule the world। blacks मतलब इन सारे काले लोग क्या आगे चल के, इवेंचुअली मीन्स एट लास्ट, क्या आगे चल के बड़े होंगे और रूल करेंगे पूरी दुनिया को। बिकॉज ही सीज़ अ लिटिल बॉय, क्योंकि उसको ये सब सोचना, उसके सोच में ये सब क्यों आया होगा? क्योंकि वो देख रहा था कि जो लिटिल ब्लैक बॉय है, जो वो काला लड़का था, ठीक है, वो एट अ टेंडर एज, टेंडर मीन्स अर्ली एज, उसे बहुत कम उम्र में, उसको एकदम बहुत छोटी उम्र में ही अपनी सुपियोरिटी का पता चल गया था, कि उसकी सुपियोरिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर क्या है वाइट लोगों के कंपैरिजन में। इसीलिए वो आगे चल के, खासकर जो काले लोग हैं, वो आगे चल के किस पे रूल करेंगे? इन वाइट वाले लोगों पे। क्यों? क्योंकि वो आदमी जो गेट पे खड़ा था, वो आज कुछ दूसरी तरीके से या दूसरी चीज़ें देख रहा था जो कि उसके सामने हो रही थी, क्योंकि आज ब्लैक वाला लड़का बॉस था किस पे? वाइट वाले लड़के पे। आई विल सेव हिम हिज पाजल, आई विल एक्सप्लेन इट टू हिम। अब वो जो आदमी खड़ा है रोड के दूसरी तरफ, वो बोलता है कि मैं इस आदमी को जो गेट के पास खड़ा है, मैं उसको ये सब समझाऊंगा कि ये कोई माइंडसेट नहीं है कि आगे चल के ब्लैक्स जो हैं, मतलब जो काले लोग हैं, वो गोरों पे राज करेंगे, या गोरे लोग कालों पे काले लोगों पे राज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसे समझाऊंगा कि ये दोनों सिर्फ एक गेम खेल रहे हैं, जो कि मैंने भी बचपन में खेला था, या मैं भी खेला करता था। आई वेंट अक्रॉस टू हिम, और वो आदमी जो रोड के दूसरी तरफ खड़ा था, वो, या रोड पे खड़ा था, वो कहाँ चला जाता है? उस आदमी के पास जो अभी गेट पे खड़ा हुआ है। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। I know what you are thinking, I said. You are thinking that maybe the black race is superior to the white because you just saw the little dark, right? So I know what you are thinking। अब उससे बोलता है कि मुझे पता है। जब जो वो इंसान जो अभी तक रोड पे खड़ा था, अब वो कहाँ चला गया है? उस इंसान के पास जो अभी गेट पे खड़ा हुआ था। ठीक है, तो उसके पास जाके कहता है कि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो।
आई सेड, यू आर थिंकिंग दैट मे बी द ब्लैक रेस इज सुपीरियर टू द वाइट। तुम्हें लग रहा होगा कि जो ब्लैक वाला लड़का है, ठीक है, वो ज़्यादा सुपीरियर है, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ में है, या वो ज़्यादा पावर में है, या उसके पास ज़्यादा पावर है, सुपियोरिटी है, स्ट्रेंथ है, इंटेलिजेंस है, किसके कंपैरिजन में? वाइट वाले बॉय के कंपैरिजन में। बिकॉज यू जस्ट सॉ द लिटिल डार्क, क्योंकि तुमने अभी उस लिटिल डार्क वाले लड़के को, लेट प्रोसीड फर्दर क्लास, लिटिल डार्क यंगस्टर ऑन द लॉन ऑर्डरिंग द लिटिल वाइट बॉय अराउंड, राइट, क्योंकि तुमने अभी अभी देखा है उस काले लड़के को जो कि लॉन में खड़ा हुआ है और किसको ऑर्डर दे रहा है? वाइट वाले लड़के को। डोंट थिंक दैट इट्स अ गेम दे प्ले, ठीक है। तो उसको बोलता है कि आपको ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों लोग एक गेम खेल रहे हैं। ऑल्टरनेट डेज, वन इज़ बॉस द अदर सर्वेंट, और वो बताता है कि ऑल्टरनेट डेज में मतलब हर दूसरे दिन इस गेम का रूल क्या है कि हर दूसरे दिन एक लड़का बॉस बनता है तो दूसरा सर्वेंट। इट्स अ ग्रैंड गेम, मीन्स इट्स अ बिग गेम। आई यूज टू प्ले इट एंड मे बी सो डिड यू, ठीक है। अब वो बोलता है कि हाँ, मैं भी, अगर मैं याद करूँ तो मैं भी अपने बचपन में ऐसे गेम या इस तरीके का गेम खेला करता था, और मुझे ये भी लगता है कि तुम भी अपने टाइम पे, अपने बचपने में ऐसा कोई गेम तुमने भी खेला होगा। येस्टरडे आई सॉ द लिटिल वाइट बॉय बॉसिंग द डार्क वन, ठीक है। अब वो बोलता है क्योंकि कल ये जो गेट पे इंसान खड़ा था वो कल नहीं था, वो रोड वाला इंसान ही कल कल मतलब प्रीवियस डे पे भी था, और करंट डे मतलब आज वाले दिन में दोनों दिन प्रेजेंट था। तो वही वो बोलता है, वो कल की बातें उस गेट के पास जो खड़ा हुआ इंसान उसको बताता है कि कल मैंने इस वाइट बॉय को, इस गोरे वाले लड़के को बॉस बनते हुए देखा था, और वो बॉस किसका बना हुआ था? उस काले वाले लड़के का। एंड आई वरीड ऑल डे ओवर द डार्क बॉयज़ रियलाइजेशन ऑफ हिज इन्फीरियोरिटी सो यंग इन लाइफ, राइट। सो आई वरीड मतलब उसको परेशान, और वो बोलता है कि मैं जब ये सब मैंने देखा कि वाइट बॉय बॉस बना हुआ था उस काले वाले लड़के का, अगर मैं बीते हुए कल की बात करूँ तो, मतलब कल की बात करूँ तो इस वजह से जब मैंने ये सब देखा तो मुझे सारा दिन मैं चिंता में था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि काले वाले लड़के को, कि जो काला वाला लड़का है, क्या उसे अभी से ही पता चल गया था अपनी कमियों के बारे में, जो कि अभी बहुत छोटा है अपनी एज से या अपनी लाइफ में, ठीक है। तो क्या अभी से इतने छोटेपन में ही उसे पता चल गया था कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो आगे चल के इन लोगों के सामने कुछ नहीं है या कुछ नहीं रहेगा, इस वजह से अभी से ही उसने मतलब सर्वेंट या स्लेव का काम करना शुरू कर दिया था। तो ये सब उसको वो बता रहा है या बताता है। वी आर सिली, वी ग्रोन अप्स आरंट वी। तो वो बोलता है कि मतलब हम स्टूपिड हैं, ठीक है, और जो कि ये सब सोच रहे हैं, ठीक है। ये सब दोनों जो जो बच्चे हैं दोनों वो गेम खेल रहे हैं, और हम दोनों हैं कि पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं इनको, इनके फ्यूचर को लेकर के। वी ग्रोन अप्स आरंट वी, राइट, और हम बड़े हैं, इतने तो समझदार हैं कि इन दोनों को देखते हुए ये ना समझें कि ये अभी से ही अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब अभी से ही ये फ्यूचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये तो बस एक गेम खेल रहे हैं, ये हमें मान के चलना चाहिए। द मैन वॉज सरप्राइज्ड एट माई आउटबर्स्ट, ही लुक्ड एट मी स्माइलिंग। द मैन वॉज सरप्राइज्ड। नाउ द मैन टू whom this person is telling, the man who was standing nearby the door, now that man got surprised, means he was amazed at my outburst. Outburst means जब मैंने ये सारी चीज़ें उसको बताई तो वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। ही लुक्ड एट मी स्माइलिंग, और फिर वो मुझे देखता है स्माइल करते हुए। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। आई नो ऑल अबाउट द गेम, ही सेड। और वो फिर जो इंसान अब गेट के पास खड़ा हुआ था, अब वो बोलना शुरू करता है, वो बोलता है इससे, दूसरे वाले इंसान से, कि हाँ हाँ मुझे पता है इस गेम के बारे में। द बॉयज़ आर ब्रदर्स माई सन्स। अब वो बोलता है, जो गेट पे इंसान खड़ा हुआ था वो बोल रहा है कि मुझे इस गेम के बारे में पता है, और ये दोनों भाई हैं, ठीक है, और जो कि मेरे बेटे हैं। He pointed to a pretty brown woman on the veranda who had just called out to call the children, who had just come out to call the children in, right। फिर वो इंसान जो अब गेट पे खड़ा हुआ था, गेट के पास खड़ा हुआ था, वो दिखाता है किसको?
एक ब्राउन वेमेन को, मतलब एक भूरी सी या काली सी औरत को, लेडी को दिखाता है, ठीक है, जो वेरांडा में खड़ी होके अपने बच्चों को, अपने इन दोनों बच्चों को अंदर आने के लिए बुला रही थी। दैट्स माई वाइफ, ही सेड, और वो कहता है कि ये मेरी वाइफ है। आई स्माइल्ड, राइट, और फिर वो हंसता है। और ये कौन हंस रहा है? जो ये स्टोरी बता रहा था, मतलब जो जो ये ऑथर है, जो रोड के दूसरी तरफ खड़े होकर इन दोनों बच्चों को दोनों दिन से देख रहा था, वो स्माइल करता है। माई स्पिरिट लाफ्ड विद इन मी, स्पिरिट मीन्स सोल, और उसकी आत्मा तक हंसने लगती है ये सब देख के। मतलब ही वॉज, दैट टाइम ही गॉट अमेज्ड, मीन्स ही वॉज स्माइलिंग बिकॉज the reason is, or the reason can be that because he was able to judge the both the boys, he has already judged both the boys, that how the white person one day will be the boss of that black boy, or how the black boy will be the boss of the white boy, and all these like silly things was going in his mind. So that is why once when he figured it out all the things clearly, that those boys, they were playing, whatever they were playing, it was just a game, not the reality of the life or reality of the current situation, right? So that is why he is laughing as well as his soul. दिस इज़ माई जमाइका, नाउ ही इज सेइंग, दैट पर्सन जो कि हंस रहा था, ठीक है, वो हंसता है, वो और कहता है दिस इज़ माई जमाइका, आई सेड इन माई हार्ट, अपने दिल में, मतलब अपने दिमाग में, अपने दिल में वो सोचता है कि ये जमाइका है, ठीक है। दिस इज़ माई कंट्री, और ये मेरी कंट्री है, और ये मेरे लोग हैं। माई पीपल मीन्स मेरे लोग हैं। आई लुक्ड एट द वाइट मैन, ही स्माइल्ड एट मी, और फिर वो जो आदमी इन दोनों को नोटिस कर रहा था पिछले 2 दिनों से, वो उस गोरे वाले इंसान की तरफ देखता है, ठीक है। ही स्माइल्ड एट मी, और वो गोरा वाला इंसान इस इंसान को, दूसरे वाले इंसान को देखकर हंसता है। वी विल मिस द ट्रैम इफ़ वी डोंट हरी, ही सेड। अ ट्रैम मीन्स अ काइंड ऑफ अ ट्रेन। तो दूसरा जो गोरा वाला आदमी था, जो डोर के पास खड़ा हुआ था, दरवाजे के पास खड़ा हुआ था, वो बोलता है इससे, इस राइटर या ऑथर से, कि चलो नहीं तो हम अपनी ट्रेन को मिस कर देंगे, राइट। So class, this is where we have end this story, and this story was written by A.L. Hendricks, right? So let's proceed further, class. So homework, students, you all have to write down the word meanings in your classwork copy and in the book too, right? So what you are going to do is you have to write down the word meanings in your classwork copy under the same lesson number and lesson name, right? And in the book also you have to write down the meanings only, and do write and complete the question and answer of this lesson in your classwork copy. Now you will be writing, I will be giving you the question and answer, right, and then you will be writing the question and answer of this lesson in your classwork copy, and start learning all the things, because as you all know that exams are about to start, right? So keep learning all the things, all the contents that we have completed both in literature and language. So let's proceed for the class. So students, this is where we have completed the entire syllabus of English literature, right? So this is after completing, or by completing this particular chapter, that is lesson 9, Jamaican fragment, we have completed the entire syllabus of English literature, right? And in our next class we will continue and complete some of the topics which are still left for us to complete in language, that is letter writing, notice writing and essay writing topics, right? So these 3 topics, which are very small topics, and these 3 topics are still left for us to complete in language portion. And on the other hand, we have completed the English literature syllabus of term 1 entirely or totally, right? So till then, take care and stay safe. Thank you, class.